Hello student, today I am going to teach you one concept, multiples and submultiples. This concept is not explained in the textbook. You will not find it in the textbook, but it is very important in solving the numericals. When we solve the numericals in the physics, we have to do the conversion of a quantity from one system to other system, from CGS to MKS, from MKS to CGS. So for that, this topic is very important. Okay, so let us discuss multiples and submultiples. First I write the table on the board and then I will explain you. So multiples, first I write the multiples. Value, prefix, symbol. 10 raised to 18, 10 raised to 15, 10 raised to 12, 10 raised to 9, 10 raised to 6, 10 raised to 3, 10 raised to 2, 10 raised to 1. You can see that there is a constant difference of 3. 18 minus 3 is 15, 15 minus 3 is 12, 12 minus 3 is 9, 9 minus 3 is 6, 6 minus 3 is 3, and then 3, 2, 1, like that. This 10 raised to 18 is known as exa, and its symbol is capital E. 10 raised to 15 is known as peta. Its symbol is capital P. 10 raised to 12 is known as tera. Its symbol is capital T. 10 raised to 9 is known as giga. Its symbol is capital G. 10 raised to 6 is known as mega. Its symbol is capital M. 10 raised to 3 known as kilo, and its symbol is small k. 10 raised to 2 is known as hecto, and its symbol is small h. 10 raised to 1 is known as deca, and its symbol is D. DA. Let me check. Yes, it is DA, right. So these are the multiples, and now there are submultiples. Submultiples are those which are having the negative power of 10. So here we end at 10 raised to 1, value, prefix, and symbol. So 10 raised to minus 1, 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3, and then constant difference of 3. 10 raised to minus 6, 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 12, 10 raised to minus 15, 10 raised to minus 18. 10 raised to minus 1 is known as deci. Its symbol is small d. The symbol for deca is dA, and the symbol for deci is small d. 10 raised to minus 2 is known as milli. Its symbol is small m. 10 raised to minus 2 is known as centi, and its symbol is small c.
10⁻³ is known as milli, its symbol is small m. 10⁻⁶ is known as micro, its symbol is mu. 10⁻⁹ is known as nano, its symbol is small n. 10⁻12 is known as pico, its symbol is small p. Here you see that it is capital P, this is small p. 10⁻15 is known as femto, its symbol is small f. 10⁻18 is known as atto, its symbol is small a. Is it clear? So these are the multiples, the positive power of 10, and these are the sub multiples, negative power of 10. Now all these are not used in the physics. Which are the most widely used in the physics, which are frequently used in the physics? So see here, this tera, giga, mega, kilo, these four are widely used, frequently used. ये आपको आना ही चाहिए. अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. ठीक है. और इनमें से कौन से यूज होते हैं? ये सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो, इतने यूज होते हैं. तो आपको सभी आने चाहिए. ठीक है. बट ये जो मैंने टिक किए हैं ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं. अब इनका यूज क्या है, मतलब इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा. ठीक है. बट आप लोग एक काम करो, वीडियो को पॉज करके आप ये टेबल स्केल पेंसिल से ये टेबल आप ड्रॉ कर दो. ठीक है. आई रब दिस मच पोर्शन. सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल का यूज़ क्या है कि फिजिक्स के अंदर जब भी कन्वर्जन करना होता है तो कन्वर्जन में ये यूज़ होता है. ठीक है. तो मैं आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन समझाता हूँ कि जो कि शायद आपको पता भी होंगे, और अगर किसी को नहीं पता है, भूल गए हैं, तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा. सो लेट अस बिगिन. 1 मीटर, नंबर 1 मीटर, मीटर का सिंबल स्मॉल m होता है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. अब सेंटी का सिंबल क्या था? c था, तो cm. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 10⁻² सेंटीमीटर. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर. तो 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये है कि 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है. तो क्या करो स्टूडेंट, ये जो 10⁻² है इसको लेफ्ट साइड में ले लो. तो 10⁻² लेफ्ट साइड में जाएगा तो कैसे होगा? देखो, 1 मीटर डिवाइड बाय 10⁻². 10⁻² यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिवीज़न में जाएगा, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर. 10⁻² को न्यूमरेटर में ले लो. सो दिस इज 10⁻² मीटर. ये 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. सो 1 सेंटीमीटर. इज दैट क्लियर? तो क्या आया? 1 सेंटीमीटर is equal to 10⁻² meter. So 1 meter is equal to 10⁻² centimeter. So 1 centimeter is equal to 10⁻² meter. Is it clear? बहुत ही सिंपल है. बट देखो, मैंने नोट किया है कि काफ़ी बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पूरा न्यूमेरिकल आ रहा होता है, फिर भी वो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो 11th है, बिगिनिंग में है हम लोग, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो ताकि आपको फिज़िक्स में 11th और 12th में कभी भी कैलकुलेशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए.
तो ये मैंने आपको एक समझाया। एक दूसरा मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। अच्छा, अभी मिली क्या होता है, तो मैंने आपको समझाया जो दूसरा टेबल था सब मल्टीपल का टेबल, उसमें मिली था 10⁻³ मिली मतलब 10⁻³। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। सो 1 मीटर क्या होगा, 1 मीटर, ये 10⁻³ को लेफ्ट साइड में ले लो जैसा हमने यहाँ पर किया था। तो फाइनली क्या हुआ था, ये 10⁻² जो है उसका 10⁻² हो जाएगा। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। आई बात समझ में? ओके। अब मैं आपको एक दूसरा कन्वर्जन समझाता हूँ कि सपोज मुझे मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्जन करना है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर। अगर हमको ये कन्वर्जन करना है तो कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट, जब आप लोग को ये बहुत अच्छे से आ जाएगा तो आप लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख दोगे कि 1 मिलीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। तो जैसा मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, पर आप लोग अभी बिगिनिंग पर हो, ओके, बेसिक स्टेज पर हो आप लोग, तो आपको मैं कैसे समझा रहा हूँ वो आप देखो कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। कैसे करना है, तो एक काम करो, दोनों साइड पर आप सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दो। मतलब जो मिलीमीटर है वो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो और सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो 1 मिलीमीटर, तो स्टूडेंट 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर होता है। सो 1 मिलीमीटर इज 10⁻³ मीटर। दिस इज इक्वल टू, अभी ये जो ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस के जगह पर आप x ले लो। मतलब यहाँ पर जो आंसर आएगा वो x है। ठीक है, यहाँ पर है सेंटीमीटर, दिस इज सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। तो यहाँ पर लिखो 10⁻² मीटर। आई बात समझ में? तो ये मीटर मीटर दोनों साइड से कैंसल हो गया, तो आया क्या, 10⁻³ इज इक्वल टू x इंटू 10⁻²। सो x इज इक्वल टू, ये 10⁻² को इसके डिनोमिनेटर में ले लो, 10⁻³ अपॉन 10⁻²। सो दिस इज 10⁻³, ये -2 न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस होगा। सो दिस इज 10⁻⁻1। सो x इज इक्वल टू 10⁻⁻1। तो मैंने बिगिनिंग में ही आपको बोला था कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? अच्छा, अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहले एक बार समझा देता हूँ कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं आंसर लिख देता हूँ, देयरफॉर 1 मिलीमीटर 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आया, यहाँ पर 10⁻⁻1 आएगा। पर अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, तो बहुत ही सिंपल है, आई रब दिस, 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। हमको चाहिए 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, तो क्या करना है, ये 10⁻⁻1 को इस तरफ ले लो, इस तरफ ले लो, तो क्या होगा, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 रहेगा, 1 सेंटीमीटर। 10⁻⁻1 को न्यूमरेटर में ले लो
तो इट विल बी 10⁻⁴ मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. सो क्या आया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. इज दैट क्लियर? तो देखो ये सब बेसिक कन्वर्जन है और ये आपको आने ही चाहिए. ठीक है, जब आप 12th में जाओगे तो नो बडी इज गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग. ओके, इट विल बी अंडरस्टूड कि आप लोग ये 11th में पढ़ के आए हो. ओके, टेक्स्ट बुक में भले उसको नहीं समझाया है बट मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से याद रखना. चलो एक और कन्वर्जन हम समझते हैं. हम किलोमीटर और मीटर का कन्वर्जन समझते हैं. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. ठीक है, तो किलो मतलब क्या होता है, तो वो आप टेबल देख लेना. किलो मतलब होता है 10⁻3. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मतलब 1000 मीटर. और आपको ये पता ही होगा कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर. तो देयरफॉर 1 मीटर इक्वल टू क्या होगा, ये 10⁻3 इस तरफ आ जाएगा तो 10⁻³ किलोमीटर होगा. रिमेंबर दिस. ठीक है, एक और कन्वर्जन, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर. अब इसको हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो 1 किलोमीटर, किलो मतलब 10⁻3. सो ये जो 1 होता है ना, ये आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, बिकॉज एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 रिमेन्स द सेम. सो 1 किलोमीटर, तो किलो क्या होता है 10⁻3, 1 इंटू 10⁻3 मीटर. तो यहाँ पर मीटर हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर आप x ले लो ब्लैंक स्पेस में, बचा सेंटीमीटर. अब 1 सेंटीमीटर क्या होता है, तो हमने आगे ऑलरेडी डिस्कस किया ही हुआ है कि 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर. तो यहाँ पर आएगा 10⁻² मीटर. तो यहाँ पर मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 10⁻3 बचा. ये x है जिसका आंसर हमको फाइंड करना है, यहाँ बचा 10⁻². सो 10⁻3 डिवाइड बाय 10⁻² इज इक्वल टू x. 10⁻² न्यूमरेटर में जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10⁻3 + 2. सो x इज इक्वल टू 10⁻5. तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर. स्टूडेंट जब किसी को ये नहीं आता है ना, तो उसका काफ़ी सब टाइम इसी में वेस्ट हो जाता है. तो मैंने आपको ये एक 5th एग्जाम्पल दिया. ठीक है, और भी मैं आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाला हूँ, आप देखते रहो, ये आपको समझ में आ जाएगा. तो न्यूमेरिकल में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है. थोड़ा सा और कन्वर्जन समझते हैं हम. सी, माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर. तो आप टेबल देखो, माइक्रो क्या होता है, माइक्रो होता है 10⁻⁻6. सो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर. सो देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 माइक्रोमीटर. इज दैट क्लियर? अब अगर हमको माइक्रोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, कि कौन सा था कंटिन्यूएशन में, आई थिंक 6th नंबर था, 7th नंबर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, इसको करना है. तो सिंपली क्या करो, यहाँ पर x ले लो. सो x को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ. x इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर डिवाइड बाय सेंटीमीटर. ऐसे भी आप कर सकते हो. ठीक है, इसके आगे मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में किया था, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हो. सो 1 माइक्रोमीटर, अब माइक्रो क्या होता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6.
सो 10⁻⁻⁶ मीटर, इस 1 को लिखो ना लिखो चलेगा। सेंटीमीटर और मीटर में क्या रिलेशन है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, तो 10⁻² हुआ। सो दिस इज 10⁻⁶ प्लस 2, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। सो दिस इज 10⁻⁴। सो 1 माइक्रोमीटर is equal to 10⁻⁴ centimeter. Is that clear? I write the answer here. Therefore 1 micrometer is equal to 10⁻⁴ centimeter. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कन्वर्जन्स हैं जो आपको आने चाहिए, और मैंने आपको कुछ बेसिक थिंग्स समझा दी है, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपका क्लियर करवा दिया है, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो फ्यूचर के अंदर अगर कोई और कन्वर्जन आएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। अब इसके बेस पर एक्सरसाइज के अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, तो उससे आपका और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कन्वर्जन से रिलेटेड। सो let us solve the numerical of exercise. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 35, उसके ऊपर 2.1 है, 2.1 फिल इन द ब्लैंक्स करके है। क्वेश्चन ए है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसकी साइड मतलब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। तो आपको एक क्यूब दिया है, उसकी साइड मतलब उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, और आपको कहा है कि उसका वॉल्यूम फाइंड करो, और कौन से यूनिट में वॉल्यूम फाइंड करना है? मीटर क्यूब यूनिट में फाइंड करना है। सो वेरी सिंपल इट इज वॉल्यूम। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है L क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, बट क्यूब है तो सभी डायमेंशन सेम होंगे, सो L क्यूब आएगा। सो लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, बट यहाँ पर हमको आंसर चाहिए मीटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 1, अब ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर रेज़ टू 3। सो दिस इज 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 इंटू 10⁻² का क्यूब मीटर रेज़ टू 3। अगर पावर है तो सबकी पावर होगी, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो सबकी पावर होगी, तो 1 का क्यूब 1 होगा, 10⁻² का क्यूब और मीटर का क्यूब। अब स्टूडेंट एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई पावर की अगर पावर है, सुनना मेरी बात को अच्छे से, पावर की पावर मतलब 2 पावर का मल्टीप्लिकेशन। सो 10⁻² इंटू 3 मीटर क्यूब, सो दिस इज 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है। जनरली 2 का क्यूब 8 होता है ना, पर यहाँ पर 2 का क्यूब 8 नहीं आएगा। पावर की पावर, मेरी बात सुनो और लिख लो, पावर की पावर मतलब 2 पावर का मल्टीप्लिकेशन। सो दिस इज द आंसर। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी, द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट है 10 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर कैसा होता है स्टूडेंट? देखो सिलेंडर ऐसा होता है ना, सिलेंडर, तो ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, उसकी हाइट मतलब लेंथ 10 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड करना है सरफेस एरिया, क्या फाइंड करना है उसका?
सरफेस एरिया, और वो भी किस में, मिलीमीटर में, मिलीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो R इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 सेंटीमीटर मतलब क्या, कितना मिलीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। देखो आप एक काम करो, आपके कंपास के अंदर जो स्केल होगी वो स्केल को आप निकालो और उसमें आप 1 सेंटीमीटर को देखो। 1 सेंटीमीटर में 10 मार्किंग्स होते हैं और जो एक मार्किंग होता है उस एक मार्किंग को कहते हैं 1 मिलीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मार्किंग्स होते हैं, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर, याद रखना। तो दिस इज 20 मिलीमीटर। तो समझ में आया, 2 सेंटीमीटर मतलब 20 मिलीमीटर। अब वैसे ही लेंथ मतलब हाइट है 10 सेंटीमीटर। सो h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो दिस इज 10 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर। सो दिस इज 100 मिलीमीटर। देखो एक बार आपके माइंड में अगर सेट हो गया, आपको समझ में आ गया, फिर आपको ऐसा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली लिखोगे 2 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर, ठीक है। फाइंड क्या करना है, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। अभी ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो ऐसे, मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, अब सिलेंडर में 3 टाइप की सरफेस है। ये सर्कुलर सरफेस नंबर 1, सेकंड सर्कुलर सरफेस नंबर 2 और उसकी कर्व सरफेस, उसकी 3 सरफेस है। तो सर्कुलर सरफेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सेकंड सर्कुलर सरफेस का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और जो कर्व सरफेस होती है उस कर्व सरफेस का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। आपको शायद याद होगा ये। सो सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, एंड प्लस 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में आएगा आर प्लस एच। पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14, 22/7 वो भी 3.14 ही होता है। 3.14, आर कितना है, आर है हमारा 20 और ब्रैकेट में है 20 प्लस एच 100। सो ये है 20 इंटू 2 40 इंटू 3.14, 40 इंटू 3.14, तो ये आया 125.6, ठीक है। और ये जो है वो है 120। सो मल्टीप्लाई करो 120 से, सो इट कम्स आउट टू बी 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया होता है ना, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में आता है, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो सरफेस एरिया इज दिस मच। स्टूडेंट इसका आंसर मैं ज़रा टेक्स्ट बुक में देख लेता हूँ कि टेक्स्ट बुक में एग्जैक्टली उन्होंने आंसर क्या दिया है। 2.2 का बी, ओके, टेक्स्ट बुक में पीछे आंसर्स दिए हुए होते हैं। 2.2 का, सॉरी 2.1 का बी है, 2.1 का बी है। तो आंसर है 2.1 का बी 1.5 इंटू 10⁴। ओके, इसका जो आंसर है वो कितना है 1.5। देखो इसको हम लिखेंगे 1.5072 इंटू 10⁴। पावर के फॉर्म में अगर लिखना है तो 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रख दो तो 10⁴ आएगा। 1.5072 इंटू 10⁴,
मिलीमीटर स्क्वायर, उसको उन लोगों ने लिखा है 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो ए और बी हुआ। नाउ वी सॉल्व सी। क्वेश्चन सी है, a vehicle moving with a speed 18 kilometer per hour. Speed of the vehicle is 18 kilometer per hour. Covers मतलब travels dash meter in 1 second. बहुत ही काम का न्यूमेरिकल है। एक व्हीकल है, व्हीकल की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो वो 1 सेकंड में कितना मीटर कवर करेगा? क्या पूछा है? 1 सेकंड में वो कितना मीटर कवर करेगा? देखो, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डैश मीटर पर सेकंड। एक्चुअली ये ऐसा है, अगर डायरेक्टली ऐसा पूछ लेते तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता, बराबर, पर उन लोगों ने थोड़ा ऐसे पूछा है, बट इसका मीनिंग ये ही है। तो हमको क्या करना है? 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब आपको कुछ बेसिक कन्वर्जन पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, बराबर। समझ में आया? तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, इज इक्वल टू 18 को 18 ही रखो, किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, और आर है डिनोमिनेटर में, तो 1 आवर मतलब 3600 सेकंड। आया समझ में? तो इसको हम लिखेंगे इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 36 इंटू 10⁻², ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ पर इसको हमको कैसे सॉल्व करना है? 18/36 कितना होता है? 18/36 इट विल बी 1/2 होता है, बराबर। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, सो दिस इज 1/2, जिसको आप 0.2 भी लिख सकते हो। सो 1/2 इंटू 10, ये 10⁻³ है, डिवाइड बाई 10⁻² है ना? या तो फिर चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, 3 - 2 मीटर पर सेकंड, तो दिस इज 1/2, 1/2 मतलब 0.5 इंटू 10 मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हुआ? ये हुआ 5 मीटर पर सेकंड। सो 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमारा आंसर था स्पीड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकंड। सो हमने क्या किया? 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहां पर आंसर आएगा 5 मीटर। सो कवर्स व्हीकल कवर्स 5 मीटर इन 1 सेकंड। ओके, एक बार जस्ट आंसर में देख लेता हूं।
2.1, यस इट इज़ 5, ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्वेश्चन डी को सॉल्व करते हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड एक मटेरियल होता है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी है 11.3। इट्स डेंसिटी इज डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डैश केजी पर मीटर क्यूब। सो डेंसिटी इज इक्वल टू डैश ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डैश किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, शायद आपने डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा आपके लोअर क्लास में, ठीक है। मुझे पता नहीं है आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का मास, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और यूनिट होता है उसका, क्योंकि मास का यूनिट ग्राम होता है और वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब। सो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी तो शायद आपको पता ही होगा। अब हमको यहाँ पर दिया है रिलेटिव डेंसिटी, तो ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है उसको हमको समझना है, क्योंकि शायद ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, relative density of object is equal to density of object divided by density of pure water। अब यहाँ पर ये जो प्योर वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये आगे फ्यूचर में बुक 2 में आने वाला है। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर, या सिंपली डेंसिटी ऑफ वाटर आप ऐसे याद रखो, ठीक है। तो ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। हमको दिया है रिलेटिव डेंसिटी और पूछा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले डेंसिटी के यूनिट देखो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। तो कैसे लिखेंगे हम? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमको वैल्यू दी है
3 वैल्यू दी है। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमको फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। डेंसिटी ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है जानते हो आप? कि अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है, कितना वाटर है आपके पास? 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर है। मतलब कैसे? आपके पास एक डब्बी है, बॉक्स है, छोटी सी डब्बी है, उस डब्बी की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर है, हाइट 1 सेंटीमीटर है, तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसके अंदर अगर आपने पानी भरा है फुल, तो वो पानी का मास कितना होगा? 1 ग्राम होगा। तो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर एक डब्बी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर एक डब्बी है, तो उस डब्बी के अंदर 1 ग्राम जितना वाटर आएगा। अच्छा, ये हुआ। अब मैं एक काम करता हूं, इस डेंसिटी को मैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट में कन्वर्ट कर देता हूं। ठीक है, तो 1 को 1 रखो, ग्राम, 1 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम? 10⁻³ किलोग्राम डिवाइड बाय सेंटीमीटर का क्यूब है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर होता है, उसका क्यूब। तो दिस इज 10⁻³ किलोग्राम डिवाइड बाय 10⁻⁻⁶ -2 इंटू 3, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। सो दिस इज, ये -6 न्यूमरेटर में जाएगा, 10⁻³ + 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो क्या हुआ? हमको डेंसिटी की 2 वैल्यू मिली, डेंसिटी ऑफ वाटर की 2 वैल्यू मिली। एक होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और दूसरी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्टूडेंट, इसको याद रखना अच्छे से। डेंसिटी ऑफ वाटर इन CGS is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इन MKS 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमको क्या फाइंड करना है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। तो डेंसिटी ऑफ लेड इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इन kg पर मीटर क्यूब। तो ये वाला हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो, नंबर वन मतलब ये वाला, डेंसिटी ऑफ लेड, लुक, डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के जगह लेड आएगा। डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। तो कितनी है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूं, थोड़ा अगर डायरेक्ट करूंगा तो फिर शायद किसी को कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मुझे डायरेक्ट नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना है मुझे। ओके, तो डेंसिटी ऑफ लेड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड 11.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 11.3 इंटू 1 तो 1 ही होगा। तो दिस इज 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आया हमारा आंसर, डेंसिटी ऑफ लेड। दिस इज आवर वन आंसर। हमने डेंसिटी ऑफ लेड फाइंड कर ली, कौन से यूनिट में? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक लास्ट वाला, मतलब ये सेकंड वाला, ये भी बहुत सिंपल ही है। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर कर लेता हूँ।
क्या करना है इसमें, डेंसिटी ऑफ लेड को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो नंबर 2, डेंसिटी ऑफ लेड इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला आएगा, फिर से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 11.3 रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ वाटर, पर अब डेंसिटी ऑफ वाटर लेनी है केजी पर मीटर क्यूब में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 10³ केजी पर मीटर क्यूब। तो दिस इज 10³ केजी पर मीटर क्यूब। सो ये हमारा आंसर है, सेकंड आंसर। ठीक है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर। 2.1 का डी, 2.1 का डी, फर्स्ट का आंसर है टेक्स्ट बुक में 11.3, अपना भी 11.3 है, और सेकंड का आंसर है 1.13 इंटू 10⁴। तो राइट ही है स्टूडेंट, 1.13 10⁴। जो मैंने लिखा है वो 100% राइट है, ये भी राइट है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे और सिर्फ इसको लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक 2.1 नंबर का न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है 2.2। टू 2.2 में क्वेश्चन ए, 2.2 में क्वेश्चन ए, 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स ही है। 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू डैश ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (10⁻²⁻²). इस तरह से हमको दिया हुआ है। ठीक है, हमको ब्लैंक स्पेस को फिल करना है। सिंपल, ब्लैंक स्पेस के प्लेस पर x ले लो, जो भी आंसर आएगा वो x होगा। x को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ, तो x इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर (10⁻²) डिवाइड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (10⁻²). ठीक है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गया। अब बचा किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मतलब 10⁻³ ग्राम। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, और मीटर का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाय ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 10⁻³ ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। 10⁻² का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴, और आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज कैंसल, सो दिस इज 10⁻⁷। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर (10⁻² इज इक्वल टू 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर (10⁻²). दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आंसर हमेशा एक बार देख लेना चाहिए, कभी बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई हो तो हमको पता चल जाए। ठीक है, 2.2 का ए, यस इट इज़ 10⁻⁷। इसके बाद है बी। बी क्या है, 1 मीटर डैश लाइट ईयर। तो स्टूडेंट मैंने आपको लाइट ईयर समझाया था कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 लाइट ईयर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर। तो 1 Ly, स्टूडेंट याद है आपको 1 Ly क्या था 9.46 10⁻15 मीटर, ये था। हमको पूछा है 1 मीटर इक्वल टू डैश लाइट ईयर, तो मीटर को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ। तो
तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. सॉरी, 1 मीटर is equal to 1 upon this light year. So 1 meter is equal to, ये 10⁻15 न्यूमरेटर में जाएगा, 10⁻−15 हो जाएगा. ठीक है, 1/9.46 इसको करते हैं 1 डिवाइड बाय 9.46. सो दिस इज 0.1057. 0.1057 और भी है डिजिट, बस यहीं तक लिखते हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, देखो ये जो 0.1057 है इसको मैं लिख देता हूँ 1.057 इंटू 10⁻⁻1. ठीक है, इसको मैंने इंक्रीज किया, इसको क्या मैंने किया, इंक्रीज किया. 0.1057 का 1.057 किया, उसको इंक्रीज किया. तो यहाँ पर जितने डेसिमल शिफ्ट हुए राइट साइड पर उतनी 10 की नेगेटिव पावर लिख देने की. तो यहाँ पर हम राइट साइड में एक डेसिमल शिफ्ट हुए, डेसिमल यहाँ से यहाँ आ गया, एक प्लेस शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर 10⁻⁻1 लिख दो, 10⁻⁻15. तो ये आएगा 1.057 इंटू 10⁻⁻16. इतना आता है, इतना लाइट ईयर. तो ये करेक्ट आंसर है, ये परफेक्ट आंसर है. टेक्स्ट के आंसर में शायद उन लोगों ने इसको राउंड ऑफ किया है, तो राउंड ऑफ के रूल मैंने अभी आपको सिखाए नहीं हैं. ठीक है, तो टेक्स्ट का आंसर है 10⁻6, 10⁻6 नहीं, सॉरी 16. तो 1 मीटर इज इक्वल टू, अभी होता है ऐसे स्टूडेंट कि ये जो होता है ना, अगर 5 से लेस होता है तो उसको 1 ले लेने का. 5 से ग्रेटर हो तो क्या करने का वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा. 5 से ग्रेटर हो ना तो उसको 10 ले लेते हैं. मतलब जैसे अगर ये 6 पॉइंट समथिंग होता तो इसको फिर पूरा 10 ले लेते हैं. 5 से छोटा है इसके लिए उसको 1 ले लेने का. ये सब आएंगे रूल्स आगे. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻16 लाइट ईयर. दिस इज आवर आंसर. ठीक है.